फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पहली बार विश्व के इतिहास में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपने आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैलवे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। I would like to give sincere thanks to International Book of World Record. On 10th of August previous month, we have attended the longest session on communication skills and personality development, which was further being addressed as in record by International Book of World Record. Complete support was being provided by the team of International Book of World Record. I am feeling very blessed. I am feeling very happy today to get my application selected at this prestigious award. I think this would be an additional advantage and achievement which I have received in my life. Again, a big thank to the organization. Thank you. Okay, I would first like to give sincere thanks to everyone who is present here for the entire session. So before moving forward, I would just like to brief my entire session, right, how these 12 hours are scheduled. So topic wise, every topic I would be giving around 30 minutes to 45 minutes. Learnings from my life which has really changed my personality, and the key mistakes which I have done, and key areas of improvement where I feel, and what was good thing in my life. So I would be briefing about that. Body language. So after 7-8 hours of session, we would be dedicating remaining 5 to 6 hours of the session for body language and personality development. Body language and communication skills. In this entire session, I would be projecting my body language with the best of my ability, and I would try to take as less break as possible, and I would try to have this session non-stop जितना भी best possible हो पाता है. अब ये personality development कैसे होगा? तो basic purpose, अगर आप लोग Greek में drama या skit observe करेंगे, तो what they do is they rapidly change the mask and change their character. Right? वो एक angel का role play कर रहे हैं, suddenly they'll change the mask और वो एक devil का role play करने लगेंगे. That means the moment they change their mask, their approach, their way of talking, their mindset completely change. This is what personality is. Further, again, personality development को अगर हम एक multiple references के साथ देखने की कोशिश करें, I was keenly interested into space. और जब मैंने space को और कॉस्मोस को, यूनिवर्स को जब बहुत क्लोजली जाना, इसके सीक्रेट्स को जाना, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वी आर मेड फ्रॉम 5 एलिमेंट्स, और ये 5 एलिमेंट जो हैं, इन्हीं से ही कनेक्टेड कहीं ना कहीं हमारी 5 इंद्रियां हैं, यानी 5 सेंसेस हैं. आपको केवल अपना एक्शन परस्यू करना है. कितनी बढ़िया बात भगवत गीता के साथ के अंदर बोली है, एक्शन इज द ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट द कंसर्न. कर्म करो, फल की चिंता मत करो. राइट? सो आप अगर आसपास नेचर में देखेंगे तो ये जितनी भी बड़ी बातें बोली गई हैं, प्रोबेबली ये सारी चीज़ों का सार, ये सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस आपको आपके आसपास नेचर के अंदर ही दिखेगा. मून की सिग्निफिकेंस कोई नहीं समझता. सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये एयरक्राफ्ट को भी उड़ने में कितना ताकत लगती है? एक छोटा सा अंकुरित दाना जब आप जमीन पर लगाते हैं, कितनी ताकत होगी उसमें? एक तो मिट्टी चीर के ऊपर आना है उसमें, और सेकेंड, अगर ग्रेविटी इतनी ही पावरफुल है तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, ये जितनी भी ट्रीज हैं, ये सरफेस के ऊपर नहीं, ये सरफेस के नीचे उगना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी खींचेगी ना इनको. कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि ये प्लांट्स, ये ट्रीज, ये सब जमीन के ऊपर क्यों उगते हैं? मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. मून जो है वो प्लांट की ग्रोथ करता है. एंड लास्ट which is there is personality conflict. हर व्यक्ति की एक अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अप्रोच होती है, अलग सोच होती है, अलग परसेप्शन होता है, और इन परसेप्शन और इन सोच के कारण अगर ऑर्गेनाइजेशन में दो लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस होते हैं, तो ऐसे क्लैशेस को हम कंसिडर करेंगे इनटू पर्सनालिटी
conflict. About power of conscious and subconscious mind, right? I'll just give a quick recap of that. So when we talk about conscious brain and subconscious brain, तो हमारा जो brain है वो majorly 3 section के अंदर divided है, as we have discussed. Conscious brain, subconscious brain and unconscious brain. Unconscious brain का बहुत ज़्यादा impact हमारे personality development parameters पे नहीं होता, तो we would not be discussing on that. 2 section के ऊपर हम लोग आज discuss करेंगे, that is the conscious brain. Conscious brain is the alert brain. आप लोग अभी मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो कर रहा है ये आपका अलर्ट ब्रेन कर रहा है. अलर्ट ब्रेन दैट मीन्स योर कॉन्शियस ब्रेन. एंड देन वी हैव द सबकॉन्शियस ब्रेन. सबकॉन्शियस ब्रेन दैट मीन्स ये मैंने जो भी चीज़ें आपको बोली हैं उसका जो भी आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, जो आपके एटीट्यूड को, जो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस ब्रेन. तो हमारा ब्रेन मेजरली इस 2 पैरामीटर पे वर्क करता है, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियस ब्रेन. When he was working at petrol filling station, वो एक डायरी अपने साथ रखते थे. उस डायरी के अंदर वो लिखते थे कि मैं किस साल में क्या करूँगा, और वो बोलते हैं कि पूरी रिलायंस इंडस्ट्री अगले 25 साल की जो थी वो मेरी डायरी के अंदर आ चुकी थी. दैट वाज द विजन एंड दैट वाज द कॉन्फिडेंस इन द विजन व्हिच ही वाज हैविंग, कि 2005 में मैं टेलीकॉम में आऊँगा, 2006 में मैं इसमें आऊँगा, 2007 के अंदर मैं एक अपना सेलफोन लॉन्च करूँगा, 2008 में मैं पेट्रोकेमिकल में आऊँगा, 2009 में मैं स्टील इंडस्ट्री में आऊँगा. और उन्होंने बोला जैसा मैंने डायरी में लिखा था, 8,000 रुपये की नौकरी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में जब मैं करता था, जैसा मैंने लिखा था मैंने वही एम्पायर बिल्ड किया. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद little bit of communication skills, right? Demo based trainings, right? What all things you should do, because when we talk about personality development, the most important parameter of personality development starts from your communication. आपके communication से ही आपका personality reflection होता है. So we will focus upon few of the personality development areas and how we can develop these areas in life. अच्छा, अब हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं. जब भी जीतते हो, कभी अच्छा मूवमेंट होता है तो कैसा जेस्चर आता है, राइट? हैप्पी. आप भी अपने आप को एक्सपैंड करते हैं. और जब भी सैड होते हो तो कैसा मूवमेंट होता है? व्हेनेवर यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, व्हेनेवर यू आर फीलिंग सैड, तो उस टाइम पे आप अपने आप को श्रिंक करते हैं. ऊंचा सोचें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी तैयारी आज से हमारे फाइनल जो चीज़ है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए. दिस इज अ ब्यूटिफुल मैसेज विच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल स्टोरी.